Good afternoon to all. Today I am here to discuss about the one of the most important topic in the psychiatry. So there are several type of the treatments that are being used in the psychiatric disorders, and one of that is the ECT. So ECT is the electroconvulsive therapy, in which what we used to induce the grand mal seizures in the person by applying the certain amount of current in the patient. जब हमारे पास ECT नहीं था, there are certain other therapies that are used to provide the to induce the current in the person. Okay, let's talk about the history. Before the introduction of the ECT, there was other treatment for like camphor therapy and the insulin therapy. So these were the two therapies which were used to induce the grand mal seizures and to treat the patient. But what we do, camphor, IM or IV injections to be given. बट इन ड्रग्स के और इन थेरेपीज़ के कुछ सर्टेन साइड इफ़ेक्ट्स थे. फॉर एग्जाम्पल, दिस कैम्फर मैक्सिमम ऑफ टाइम यूज टू कॉज द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और द कार्डियक डिसरिदमियाज. ठीक है, तो देर आर मोर चांसेस ऑफ द पर्सन to take them to the deathbed, or it may be lethal for the person if we are doing such therapies. So in late 1938 there were the two psychiatrists or two neurologists who had given the ECT, that is electroconvulsive therapy. Previously electroconvulsive therapy was known by the electroshock therapy. So this was introduced by Binney and Serletti in 1938 में बिनी एंड सर्लेटी ने इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी इंट्रोड्यूस की, जिसको लेटर ऑन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का नाम दिया गया. एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज लाइक व्हाट हैपन इन ECT. Okay, we'll discuss the definition. Electroconvulsive therapy is the one of the somatic treatment which induces the grand mal seizures after the application of current or electricity at the frontotemporal region. ठीक है, हम पेशेंट के जो फ्रंटोटेम्पोरल रीजन है वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स अप्लाई करके करंट देंगे पेशेंट को, और उस करंट की वजह से पर्सन में ग्रैंड माल सीजर्स इंड्यूस होंगे. सो दैट इज कॉल्ड ECT. ये है हमारी ECT की डेफिनेशन. नेक्स्ट इट्स कम द पैरामीटर. द पैरामीटर मतलब हम वी विल गोना डिस्कस कि कितना अमाउंट ऑफ करंट वी हैव टू अप्लाई और इंट्रोड्यूस. तो जब करंट की बात आती है, इट इज़ नॉट लाइक द complete shock will be given for a long duration, it may cause death to the person. तो जो हमारी अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है, उन्होंने 1978 में हमें एक क्राइटेरिया दिया कि हमें कितना अमाउंट ऑफ करंट पर्सन को डिलीवर करना है एंड कितनी देर के लिए करना है. तो दे टोल्ड कि हम 70 to 120 वोल्ट तक करंट डिलीवर कर सकते हैं, एंड ड्यूरेशन विल बी 0.7 to 1.5 सेकेंड्स ओनली. हम लोग 70 से 120 वोल्ट का करंट देंगे पेशेंट को, और 0.7 से जस्ट 1.5 सेकेंड तक ही हम लोग करंट दे सकते हैं. सो दैट आर द पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाइड. Maximum current in
the conditions, it may go to 130 volt but not more than that. So that was the parameter. Next we will talk about the type of seizures. I told you जब हम पेशेंट को करंट इंट्रोड्यूस करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में सीजर इंड्यूस होते हैं. तो जो सीजर इंड्यूस होते हैं दैट इज द ग्रैंड माल सीजर्स. एंड ग्रैंड माल सीजर हैज़ द 2 phases. फर्स्ट वन इज द टोनिक फेज एंड नेक्स्ट इज द क्लॉनिक फेज. जो हमारी टोनिक फेज होती है दैट इज जस्ट फॉर टू 10 to 15 seconds ओनली एंड विच इज़ फॉलोड बाय द क्लॉनिक फेज. टोनिक फेज के बाद क्लॉनिक फेज आएगा और क्लॉनिक फेज लास्ट करता है हमारा 30 seconds के लिए. सो दैट आर द phases or the type of the grand mal seizure that are being induced after the application or introduction of the current to the patient's frontotemporal region or temporal part of the brain. Now we will discuss how ECT works. Means the mechanism of action. अगर हम mechanism of action की बात करते हैं, till today अभी तक प्रूवन नहीं है हाउ ECT वर्क्स इन आवर बॉडी. बट वहाँ पे कई रिसर्चेस और कई हाइपोथेसिस हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि माइट बी ECT ऐसे काम करता है. तो व्हाट इट इज़, जो हमारा ब्रेन है उसका एक पार्ट है हमारा दैट इज़ डायएन्सेफेलॉन. जो हमारा डायएन्सेफेलॉन है व्हाट इट डूज, यहाँ पे हमारे सीजर्स इंड्यूस होते हैं. और देयर इज लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम इज द इमोशनल ब्रेन. ठीक है, लिम्बिक सिस्टम को इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं. इसके बीच में हमारे पास है एक कैटाकोलामाइन पाथवे. जब हम लोग करंट देते हैं that ECT और that current act here, कैटाकोलामाइन पाथवे पे एक्ट करता है ये, और इसकी वजह से हमारे सीजर्स इंड्यूस होते हैं. लेटर ऑन इस सीजर्स की वजह से हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है, मतलब जो हमारा इमोशनल ब्रेन है, दैट गेट इफेक्टेड. इमोशनल ब्रेन में हमारे मूड में चेंज आता है. सो दैट इज़ हाउ ECT वर्क अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस. डायएन्सेफेलॉन और लिम्बिक सिस्टम के बीच में हमारा कैटाकोलामाइन पाथवे होता है. यहाँ पे हमारा करंट एक्ट करता है और इसकी वजह से हमारे मूड में चेंज आता है एंड इट इम्प्रूव्स द पर्सन्स हेल्थ और पर्सन्स मूड. So that is the mechanism of action, how the ECT works. Next we will do what? We will discuss the type of ECT. How many type of ECT is? So ECT is mainly of 2 types. So first type is direct ECT. So before talking about direct, let's talk about the modified ECT. There are 2 types, okay? What is in modified? हम लोग जब पर्सन को या पेशेंट को करंट डिलीवर करते हैं उसके साथ साथ हम पेशेंट को ड्रग्स भी देते हैं. ड्रग्स सो दैट हमारा करंट जो है या जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है डायरेक्टली पेशेंट को हार्म ना करे. तो नाउअडेज मॉडिफाइड टाइप ऑफ ECT इज इन यूज़. मतलब जहाँ पे हम पर्सन को करंट देते समय देने से पहले कुछ ड्रग्स देते हैं या कुछ मेडिसिन देते हैं सो दैट पर्सन को करंट नेगेटिवली या साइड इफ़ेक्ट्स ना शो करें. बट प्रीवियसली जब ECT न्यू इंट्रोड्यूस्ड हुआ था और व्हेन देयर वाज नो सर्टेन अदर रिसर्चेस विच वाज शोइंग कि हम लोग इसमें ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं, तो देयर वाज नो ड्रग यूज़. ECT में कोई भी ड्रग का यूज़ नहीं होता था. दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट ECT. मतलब हम डायरेक्टली पर्सन को इलेक्ट्रोड्स अप्लाई करते थे, करंट दे देते थे, पर्सन को सीजर आ जाते थे. दैट्स इट. दैट वाज द डायरेक्ट टाइप ऑफ ECT. बट नाउअडेज मॉडिफाइड वन इज बीइंग यूज्ड. सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी एंड द टोटल नंबर ऑफ ECT. हम पर्सन को कितनी फ्रीक्वेंसी तक या कितना करंट
दे ECT दे सकते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी, हम लोग हर वीक में 3 times पर वीक हम लोग पर्सन को ECT या पेशेंट को ECT दे सकते हैं. ECT सेशन विल बी टेकन ओनली थ्राइस इन द वीक. और जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी जो हमारी ECT सेशंस होंगे दैट विल बी ऑन द अल्टरनेटिव डे. अल्टरनेटिव डेज हाउ, लाइक इट इज़ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. तो व्हेन वी आर गिविंग ऑन मंडे, Tuesday will be the rest day, then Wednesday, Thursday will be the rest day, then Friday and then Saturday will be the rest day. तो मीन एक दिन का गैप लेके हम पर्सन को ECT डिलीवर करते हैं एंड इट इज़ कि हम वीक में 3 बार ही ECT डिलीवर करेंगे. नेक्स्ट इज कितने सेशंस हम ECT के एक पेशेंट को दे सकते हैं. अगर हम लोग मैक्सिमम ऑफ द रिसर्च एनालिसिस देखें तो इट वाज फाउंड कि एक पेशेंट में 6 से 10 सेशंस के बीच में ही पर्सन की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आ जाता है. बट इफ़ इट इज़ नॉट देयर तो हम 25 सेशन से ज़्यादा 25 सेशन से ज़्यादा कभी भी ECT पर्सन को नहीं देते हैं. ऑन द 25th सेशन ऑफ ECT वी यूज टू गोना सीज विद द ECT ट्रीटमेंट. So that is the frequency and the total number of ECT. Then next we will talk about the drugs. तो मैंने बताया कि हम लोग में certain drugs का यूज़ करते हैं. तो let's talk about drugs. हम लोग कौन कौन से drugs का यूज़ करते हैं. Firstly is the anesthesia. So anesthesia is for the unconsciousness of the person or to make person अनकॉन्शियस. एनेस्थीसिया का रीज़न यही है कि पर्सन को करंट डिलीवर होने का या उस पेन का उसका पता ना चले. और जो मेनली हम लोग एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं दैट इज़ थायोपेंटोन सोडियम. और जो थायोपेंटोन सोडियम की डोज होती है दैट इज़ 3 to 5 mg per kg बॉडी वेट एंड इट इज़ गिवन IV. तो एनेस्थीसिया दैट इज़ यूज इज थायोपेंटोन सोडियम. डोज हम कैलकुलेट करेंगे पर केजी में हम लोग 3 से 5 mg देते हैं. मींस अगर हम लोगों को पर्सन की 50 kg का पर्सन है एंड हमें उसको थायोपेंटोन सोडियम देना है वी विल मल्टीप्लाई विद दी पर केजी बॉडी वेट. ठीक है. देन नेक्स्ट ड्रग व्हाट वी यूज इज द मसल रिलैक्सेंट्स. So the reason behind the use of muscle relaxant is only that to relax the muscles. And जो muscle relaxant we are using is the succinylcholine. तो succinylcholine यूज़ करते हैं और उसका जो हमारा डोज होता है दैट इज़ 1 mg per kg बॉडी वेट. ठीक है. सक्सिनाइलकोलिन जो होता है हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब टॉप टू बॉटम वर्क करता है. हमने जैसे ही पर्सन को IV सक्सिनाइलकोलिन दिया इट स्टार्ट एक्टिंग फ्रॉम हेड टिल द टो ऑफ द पर्सन. हम लोग टो में लास्टली पर्सन की एक्टिविटीज़ को चेक करते हैं और उसके बाद वहाँ पे रिलैक्सेशन होती है. मीन्स हमारा मसल रिलैक्सेंट प्रॉपरली एक्ट कर चुका है नाउ. सो दीज आर द मसल रिलैक्सेंट. और नेक्स्ट इज द एट्रोपिन सल्फेट. तो पर्सन को जब हम एट्रोपिन सल्फेट देते हैं इट इज़ गिवन 30 minutes बिफोर. जब पर्सन अपने ही वार्ड में है अभी तक उसे ECT OT माइनर में नहीं लाया गया है मतलब ECT रूम पे नहीं लेके आए हैं तभी जो है जो उसकी प्रीवियस वार्ड नर्स है वो उसको 30 minutes प्रायरली ही एट्रोपिन सल्फेट दैट इज़ 0.6 mg इधर IM या सबक्यूटेनियस देगी. और रीज़न एट्रोपिन सल्फेट देने का यही होता है कि जब पर्सन अनकॉन्शियस है वहाँ पे चांसेस होते हैं हमारे स्लाइवा सिक्रीशंस के और चोकिंग के. तो एट्रोपिन सल्फेट की वजह से वो सिक्रीशंस कम हो जाएंगे और एस्पिरेशन के चांसेस कम हो जाएंगे. तो these are the 3 drugs which we are using. First was the anesthesia that was thiopentone sodium. Then the muscle relaxant that is succinylcholine and the atropine sulfate. So these were the 3 drugs which we were using. Now we will talk about the
application of electrodes. How we you apply the electrodes? Let's talk. There are two ways to apply the electrode. First is the bilateral and one is the unilateral. Okay, what happened in bilateral? Okay, here it is the face of the person, the eyes of the person, nose and the face, and the ear of the one and the second ear. जब हमें बायलेटरली पर्सन के इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई करना है, व्हाट वी डू, हम लोग जो पर्सन की आई है या पेशेंट की आई है उसका आउटर कैंथस से लेके द ट्रेगस ऑफ द एयर, कान के टॉप तक एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करेंगे और वहाँ से हम लोग यहाँ पे 1 to 1.5 इंचेस अब मार्क करेंगे. ओके, हेयर इन द फ्रंटो टेम्पोरल रीजन, और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोड अप्लाई करेंगे. वन साइड हो गया. नेक्स्ट साइड अगेन हम लोग यहाँ पे आउटर कैंथस से लेके ट्रेगस ऑफ एयर तक एक लाइन ड्रॉ किया इमेजिनरी, वहाँ से हमने 1 से 1.5 इंच अब मार्क किया और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड अप्लाई किया. मीन्स हमने दोनों फ्रंटो टेम्पोरल रीजन में इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई कर दिया. सो दीज आर दी bilateral electrode application. How we apply electrodes bilaterally. Now if we are talking about unilateral, what happens in unilateral? Unilateral में it is like either we can apply at the here or this region. Then so when we are applying here, we have to find out the non-dominating side of the brain. पर्सन की हमारे ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन है 2 हेमिस्फेयर है, हमारा राइट हेमिस्फेयर और द लेफ्ट हेमिस्फेयर, और हमारा ब्रेन क्रिस क्रॉस में वर्क करता है. फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन और द पेशेंट इज लेफ्ट हैंडर, अगर वो लेफ्ट हैंडर है, लेट्स टॉक. ओके, पर्सन लेफ्ट हैंडर है और पर्सन राइट हैंडर है. जब हम और ओके ये हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है और ये राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, 2 पार्ट्स. अब जो लेफ्ट हैंडर है उसका जो डोमिनेटिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है दैट विल बी द राइट ब्रेन, और जो हमारा राइट हैंडर है उसका डोमिनेटिंग पार्ट होगा हमारा लेफ्ट ब्रेन. तो हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं यूनिलेटरल में? इट विल बी नॉन डोमिनेटिंग साइड. अगर लेफ्ट हैंडर की डोमिनेटिंग राइट साइड है तो हमारी नॉन डोमिनेटिंग होगी लेफ्ट साइड. ठीक है, तो हमें पता लग गया जो लेफ्ट हैंडर है उसकी लेफ्ट साइड ही नॉन डोमिनेटिंग साइड होगी और हम लोग लेफ्ट साइड पे ही इलेक्ट्रोड को अप्लाई करेंगे. सेम थिंग अगर राइट हैंडर है, मतलब उसका जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है दैट इज द नॉन डोमिनेटिंग साइड. That is how we apply the electrodes in the unilateral on finding out the after finding out the non-dominating side. So that was the application of the electrode bilaterally and unilaterally. Okay, next we will discuss the indications when and why we are giving the ECT. Okay, before indications will be the disease conditions. Okay, but उन disease condition में हम कब ECT देते हैं? Firstly we will discuss that thing. First person is stupor. Stupor मतलब person is near to unconscious और उसमें कोई भी हरकत नहीं है. He is like unconscious है person, उसमें कोई भी activity नहीं है. First condition stupor. Next is नो इफेक्ट ऑफ ड्रग्स. जब हम लोग पर्सन को साइकोफार्माकोलॉजी पर रख रहे हैं या पर्सन को हम कोई और थेरेपी दे रहे हैं बट उसका इफेक्ट पर्सन की हेल्थ पे आ ही नहीं रहा है, उसकी साइकियाट्रिक कंडीशन नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी भी नहीं मूव कर रही है, देन ओनली वी गिव द ECT. थर्ड, व्हेन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड.
जब हमें किसी डिजीज कंडीशन में पर्सन को ड्रग नहीं दे सकते, फॉर एग्जांपल पर्सन डिप्रेशन के साथ है बट उसे हार्ट डिजीज भी है, तो इन दैट कंडीशन हम पर्सन को कभी भी एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं दे सकते. ऑन दैट कंडीशन वी विल प्रोवाइड द पर्सन विद द ECT. ओके, दैट आर द रीजन. फोर्थ इज द suicidal ideas. Okay, leave that suicidal idea. Next is unsatisfactory response to the drugs or having serious side effect of the drugs. तो these are the conditions. हम कब कौन सी disease condition में कोई भी medicines के बाद ECT का use करते हैं. तो now we will find out the disease condition. First is the suicidal ideation. The person with the suicidal attempt and the suicidal continuous ideation, उन्हें हम ECT देते हैं. Next is the major depression. Person depression के साथ है. Third is the mood disorder. Mood disorder में it can be mania even. Then another one be severe catatonia. सीवियर कैटाटोनिया मीन्स जहाँ पे हमारा पर्सन रिजिड होता है, उसकी ही इज कॉन्टिन्यूसली मेंटेनिंग हिमसेल्फ इन अ वन शेप और साइज. फॉर एग्जाम्पल ही हैज टेकन वन पोजिशन, ही विल कॉन्टिन्यूसली बी इन दैट पोजिशन ओनली इवन इफ इट इज डिसकम्फर्टेबल फॉर हिम ओनली. ओके, थर्ड इज द स्किज़ोफ्रेनिया and other mood disorder can be there, other organic psychosis can be there. I told you कि कई patients में medical condition होती है जिनमें हम लोग patient को drugs नहीं दे सकते, तो we will go for ECT. For example, person with the depression and the cardiac disease, and when the female is pregnant, हम उन लोगों को antipsychotics नहीं दे सकते, तो pregnant women में भी हम लोग ECT के लिए ही जाते हैं. और next is the contraindication. हम कब ECT नहीं देंगे? तो देर इज द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन. जब हमारा ICP इंक्रीज्ड हो, वी नेवर एवर गिव द इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी. बिफोर ECT वी गो फॉर द ICP चेकिंग. हम लोग इंट्राक्रैनियल प्रेशर चेक करेंगे. अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज्ड है, वी विल नॉट गिव द शॉक टू द पर्सन. नेक्स्ट इज दैट वाज द एब्सोल्यूट वाली. नेक्स्ट इज द रिलेटिव वंस. हम किस कंडीशन में नहीं दे सकते. इट कैन बी सेरिब्रल एन्यूरोसिस, can be cerebral hemorrhage, any brain injury, acute myocardial infarction, pneumonia, retinal detachment, tumor in the retina, eye surgery. इन conditions में हम लोग कभी भी person को ECT नहीं देते हैं. It is relatable. Okay, तो next is the complications. Mainly ECT की lethal complications नहीं होती हैं. अगर हम लोग रिसर्च एनालिसिस को देखें तो इट वॉज फाउंड कि देर इज़ वेरी वेरी रेयर चांसेस ऑफ द ECT इफ़ इट कॉजेज द लाइफ थ्रेट. बहुत रेयर चांसेस में ही पर्सन को लाइफ डेथ होता है. बट देयर कैन बी फ्रैक्चर. जो पर्सन ऑस्टियोपोरोसिस के साथ है या कोई बोनी डिजीज़ के मतलब फ्रेजाइल बोन्स के साथ है, जब करंट इंड्यूस होता है ना पर्सन में करंट देते हैं और उसके बाद सीजर इंड्यूस होते हैं, तो द हेल्थ वर्कर यूज टू पुट द प्रेशर सो दैट पर्सन कांट फॉल डाउन. उसकी वजह से कई बार फ्रैक्चर हो जाता है. कई बार अगर पर्सन को हेल्थ मेंबर्स ने पर्सन के ऊपर प्रेशर नहीं अप्लाई किया और पेशेंट फॉल हो गया, तो भी फ्रैक्चर के चांस होते हैं. और समटाइम कार्डियक डिसरिथमियास कैन अकर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कैन अकर. अगर एट्रोपिन हैज नॉट गिवन हमारी एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं. सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ECT. नेक्स्ट आर द साइड इफेक्ट्स. What are the side effects? First one is directly after the ECT person को memory impairment होता है.
Person is not oriented to the time, place and person. Next is the poor consciousness. Poor concentration. Person may be anxious. There is headache, weakness, fatigue, dryness of the mouth, unsteady gait, tongue bite or incontinence can be there. So these are the side effects. Okay, we will discuss the ECT team. ECT team में कौन कौन होते हैं? तो first is the psychiatrist. Next is the anesthesiologist. Third is trained nurse, or can say psychiatric nurse. And the auxiliary persons. So these are the team members in the ECT room. अब हम लोग बात करेंगे how ECT is being given, means process. सबसे पहले पर्सन के हम लोग फर्स्ट थिंग व्हाट इज डन, हम लोग पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं. आइडेंटिफाई करेंगे बाय नेम, आईडी प्रूफ एंड ऑल. आइडेंटिफाई पेशेंट हो चुका है, उसके बाद हम लोग फाइंड आउट डू दी कंप्लीट एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन में आता है हम लोगों का फिजिकल एग्जामिनेशन. देन हम लोग पर्सन की चेक करते हैं रिपोर्ट्स में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कहीं पे इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज तो नहीं है, कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कोई और रिपोर्ट तो नहीं है जिसकी वजह से हम लोगों को ECT को विदहोल्ड करना चाहिए. तो ऑल दिस एग्जामिनेशन विल बी डन. नेक्स्ट विल बी द प्रिपरेशन. नाउ वी विल प्रिपेयर द पेशेंट फॉर ECT. अब ECT की प्रिपरेशन होती है, दैट इज द रोल ऑफ नर्स. तो नर्स विल प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द ECT. Firstly, a nurse will what do? She will take the psychiatric history, do the mental status examination, assess the patient and the family members' knowledge. नर्स जो है पेशेंट से और फैमिली मेम्बर से ECT की फाइंड आउट करेगी कि उन लोगों को कितनी नॉलेज है. नहीं नॉलेज है, देन शी विल प्रोवाइड द कंप्लीट नॉलेज एंड टेल देम अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ECTs. नेक्स्ट इज व्हाट? Nurse will check for the consent. Check for the consent. Here I am repeating again. Only check for the consent. Either the psychiatrist has been taken the consent or not. मतलब नर्स सिर्फ चेक करेगी कि साइकियाट्रिस्ट ने आके पर्सन से या पेशेंट से या उसके रिलेटिव से कंसेंट लिया है या नहीं. नर्स कभी कंसेंट नहीं लेगी पेशेंट से. इट्स नॉट इन हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ओनली डॉक्टर गोना टेक दी कंसेंट. बस नर्स चेक करेगी कि कंसेंट हुआ है या नहीं हुआ है. हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ है तो शी विल कम्युनिकेट इट टू द साइकियाट्रिस्ट और साइकियाट्रिस्ट आके फिर वहाँ पे कंसेंट फॉर्म साइन करवाएगा. देन द नर्स विल चेक द वाइटल साइंस. पर्सन के वाइटल साइंस को नर्स असेस करेगी. देन नर्स का एक और रोल है कि शी हैज़ टू चेक कि पर्सन ने वॉइड कर लिया है, यूरिनेट कर लिया है, उसका स्टमक एम्प्टी है कि नहीं है. नेक्स्ट, नर्स प्रोवाइड दी वॉश टू द हेयर्स. शैम्पू करेंगे हेयर्स को ताकि वहाँ पे कोई भी ऑयल ना हो, वहाँ पे कोई भी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना हो जिससे पर्सन को हार्म हो सके. तो शैम्पूइंग करेंगे. सारी ज्वेलरीज को रिमूव करेगी. कोई भी मेटालिक चीज़ है उसको पर्सन की बॉडी से रिमूव किया जाएगा. दैट विल बी द नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल. नेक्स्ट इज व्हाट? अगर पर्सन किसी भी ड्रग पे है तो वो ड्रग हम लोग विदहोल्ड करेंगे. हम लोग 6 आवर्स प्रायर कुछ भी पर्सन को नहीं देंगे. ही विल बी नील पर ओरल.
पर्सन को कुछ भी नहीं दिया जाएगा. दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स. नेक्स्ट इज़ व्हाट, अब पर्सन को हमें शिफ्ट करना है टू द प्री ईसीटी रूम, सॉरी टू द ईसीटी रूम या इंट्रा प्रोसीजर रूम. तो उस टाइम पर्सन जो नर्स है वो पर्सन को एट्रोपिन सल्फेट IM 0.6 mg देगी. मीन्स मैंने पहले ही बताया एट्रोपिन सल्फेट 30 मिनट्स प्रायर देते हैं. तो नर्स वार्ड से निकलते टाइम पेशेंट को एट्रोपिन सल्फेट देगी, डॉक्यूमेंट करेगी. नाउ नर्स विल हैंडल हिम और हर टू द OT स्टाफ, OT स्टाफ और से ECT रूम स्टाफ. वहाँ पे शी विल टेल अबाउट एवरीथिंग that is done, consent has been taken, jewelry removed, shampooed the hair, urinated, stomach is empty, next atropine sulfate IM has been given. All reporting will be done. Then it's come to the interprocedural room or can say intra ECT or during the procedure. तो हम लोग ECT कैसे डिलीवर करते हैं. फर्स्टली पर्सन को हमने बेड पे लेटा दिया. आफ्टर मेकिंग द पर्सन टू गेट इनटू द बेड या स्ट्रेचर, पर्सन को हम लोग फ्लूइड्स लगाते हैं. एंड इन फ्लूइड समटाइम फ्यू ऑफ द इंस्टीट्यूट यूज टू गिव द सक्सिनाइल कॉलिन इन दैट फ्लूइड डायरेक्टली और समटाइम इट्स नॉट लाइक दिस. तो आफ्टर दैट देयर शुड बी ऑल द इक्विपमेंट लाइक suctioning machine should be near, mouth gag will be there, gauze pieces should be there, tongue depressor should be there so that tongue does not get fall back side और वहाँ पे person को choking के chance ना हो. Everything will be near to the person. अब क्या करते हैं, what we do, person is lying down, here it's arm, person को BP कफ अप्लाई किया जाता है. BP कफ और इसको हम लोग इन्फ्लेट कर देते हैं. ठीक है, प्रेशर अप्लाई कर दिया है. नाउ व्हाट हैपन इन द अदर आर्म, हम लोग पर्सन को IV मसल रिलैक्सेंट देते हैं. ठीक है, दूसरे हाथ में कैनुला था, वहाँ से हमने पर्सन को मसल रिलैक्सेंट दे दिया. अब नाउ मसल रिलैक्सेंट आई टोल्ड यू फ्रॉम हेड टू टो इट गोना वर्क. ठीक है, पर्सन की बॉडी में हेड से टो पे काम करेगा. रीज़न बिहाइंड इज दैट कि हमने BP कफ पहले क्यों अप्लाई कर दिया, इज ओनली कि अब इस वाली आर्म में हमारे मसल रिलैक्सेंट नहीं होगा. जब हम लोग इलेक्ट्रोड्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नर्स विल पुट हर हैंड और शी विल फाइंड आउट द ड्यूरेशन ऑफ द सीजर्स. ओके, व्हाट हैपन कि पर्सन को लेटा दिया, सक्शनिंग मशीन सब कुछ आसपास रख लिया. देन वी विल अप्लाई द BP कफ. फिर उसके बाद हम यहाँ से थ्रू कैनुला या थ्रू IV ड्रिप्स हम पर्सन को मसल रिलैक्सेंट देंगे. और एनेस्थीसिया हैज़ बीन गिवन बाय द एनेस्थीजियोलॉजिस्ट IV, नॉट एपिड्यूरल और इन द स्पाइन. वो भी IV ही देंगे पर वो देगा एनेस्थीजियोलॉजिस्ट ही ओनली. डन. IV एनेस्थीसिया देने के बाद BP कफ अप्लाई करेंगे, उसको इन्फ्लेट कर देंगे सो दैट यहाँ पे प्रेशर अप्लाई हो जाए. देन मसल रिलैक्सेंट देंगे और जब मसल रिलैक्सेंट मैंने बोल दिया वो टॉप टू बॉटम काम करता है मतलब. और एंड में जब नर्स को यहाँ पे एक मोमेंट फील हुआ उसके बाद हमें पता लग गया मसल रिलैक्सेंट कंप्लीट बॉडी में जा चुका है. नाउ इट विल बी द टीम वर्क. यहाँ पे अब जो है हमारा साइकेट्रिस्ट विल अप्लाई द इलेक्ट्रोड आफ्टर क्लीनिंग द इलेक्ट्रोड्स और क्लीनिंग द एरिया विद द नॉर्मल स्लाइन. ठीक है, और द जेल कैन बी यूज्ड. So after that electrodes will be applied. That electrodes are attached to the ECT machine. ECT machine में पहले से ही current and the duration has been set. यहाँ पे duration और current पहले से ही set होता है और उसके बाद we have to just trigger or just have to press the button to apply the current. During the current application, everyone means they will be away. Even the team members don't used to wear any kind of a jewelry or any kind of the metallic item. Then what happened? Current delivered,
मशीन गेट स्विच बाय इटसेल्फ, क्योंकि वहाँ पे टाइम एंड ड्यूरेशन हैज़ बीन सेट। अब यहाँ पे नर्स विल फील द ग्रैंड माल सीजर्स, क्योंकि यहाँ पे मसल रिलैक्सेंट नहीं है, तो नर्स को यहीं पे ही सीजर्स जो हैं वो ऑब्जर्व करने हैं। यहीं पे वो टॉनिक एंड क्लॉनिक फेज को डिफाइन करेगी, सेपरेट करेगी, एंड शी विल फाइंड आउट कि उस पर्सन को ग्रैंड माल सीजर्स कितनी देर के लिए आए हैं। उसके बाद दैट इज द ओनली प्रोसेस, बीपी कर्व विल बी रिमूव्ड, suctioning will be done to avoid any kind of aspiration, tongue depressor can be used so that tongue can't fall backside. That is the ECT process. BP cuff removed, the person will be shifted to the post ECT ward. अब पर्सन को हम लोग आफ्टर ECT रिकवरी रूम पे सेंड कर देते हैं। Here the what is the duty of the nurse in the post ECT room? We'll discuss that. Just a minute. पोस्ट ECT रूम में क्या होता है? नर्स विल चेक दी वाइटल साइंस विल बी चेक्ड। नेक्स्ट विल बी कॉन्टिन्यूसली ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन विल बी प्रोवाइडेड टू द पर्सन। नेक्स्ट इज हम लोग पर्सन की कन्फ्यूजन चेक करते हैं, पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस को। नेक्स्ट पर्सन को ट्राई करते हैं कॉन्शियस करने में। नेक्स्ट उसकी ओरिएंटेशन चेक करते हैं। अगर पर्सन को कंफ्यूजन और पोस्ट इक्टल रेस्टलेसनेस है तो हम लोग पर्सन को डायजेपाम, बट इवन आफ्टर द फिजिशियंस और साइकियाट्रिस्ट ऑर्डर ही हम उनको डायजेपाम देंगे, एंड वी विल डॉक्यूमेंट द ECT process and then get back the person to his or her ward. So that was all today's topic about ECT. We had studied the history before ECT, what we used to do ECT. ECT was developed or introduced by Binney and Salati in 1938. American Psychiatric Association has given the voltage and the duration, how much we can use the current and for how long. Then we studied about the types, that is unilateral, bilateral and modified and the direct type of ECT. Then indication when we can use the ECT. Then the role of the nurse, side effect, contraindication and complication of ECTs. So that was today's topic. Thank you. Stay happy and healthy.